Assalamu alaikum. I'm a professor at the University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota, USA. I've been a convert to Islam for the past 12 years when I was converted by Pir Sahib and Qibla Sahib. They are living role models for me in my connections and introduction to Islam. Dhakar Sharif is my home, a place where I find peace and love. As-salatu was-salamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. As-salatu was-salamu alayka ya Sayyidi ya Habiballah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. मैं अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा का एक प्रोफेसर हूँ जो मिनीसोटा के शहर मिनीएपोलिस में मौजूद है। आज से 12 साल कबल पीर साहिब और किबला साहिब ने मुझे इस्लाम में दाखिल किया। पीर साहिब और किबला साहिब मेरे लिए रोल मॉडल्स हैं। ये मुझे इस्लाम के साथ जोड़ने वाले हैं और इस्लाम से मेरा तारुफ करवाने वाले हैं। ईदगाह शरीफ मेरा घर है और मुझे यहाँ से सुकून और दायमी मोहब्बत हासिल है। I want to share with you some of my experiences with becoming a Muslim in modern, changing, Christian-dominated world. I'm grateful to Pir Sahib for providing me this opportunity. आज मैं आपके साथ एक ईसाई मुल्क और मॉडर्न दुनिया के मुसलमान शहरी की हैसियत से अपने कुछ तजुर्बात शेयर करना चाहता हूँ और इस पर मैं पीर साहिब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका फराहम किया। I teach medicinal chemistry in the College of Pharmacy at the University of Minnesota and do research trying to discover new antibiotics and anti-cancer drugs. Because I'm the only Muslim faculty member, I also serve as faculty facilitator to the Muslim Student Affinity Group. मैं अमेरिका में कॉलेज ऑफ फार्मेसी के मेडिसिनल केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट में पढ़ाता भी हूँ और साथ ही एंटीबायोटिक्स बनाने और कैंसर के इलाज के लिए दवाइयाँ दरियाफ्त करने पर रिसर्च भी करता हूँ। क्योंकि मैं पूरे कॉलेज में वाहिद मुसलमान प्रोफेसर हूँ, इसलिए मैं मुसलमान बच्चों के लिए फैकल्टी एडवाइज़र यानी मुशीर का काम भी करता हूँ। Islam and its values have added new understanding to things I teach to pharmacy students. For example, I teach that alcohol consumption causes more than 4% of cancer in the world. But the map shows the distribution of the countries where people have cancer caused by alcoholism, alcohol consumption. Doesn't show any major Muslim majority countries with alcoholism induced cancer. Clearly, teachings of Islam against the alcohol consumption are providing benefits in terms of reduced cancer incidence. मेडिकल साइंस से मुताल्लिक वो मालूमात जो मैं फार्मेसी के तलबा को पढ़ाया करता था, इस्लाम और इस्लामी कदरों ने इसके ऊपर एक नए अंदाज से रोशनी डाली। मिसाल के तौर पर मैं पढ़ाता था कि पूरी दुनिया में होने वाले कैंसर का 4% शराब नोशी की वजह से होता है, लेकिन जब दुनिया के नक्शे पर देखा जाए तो वो ममालिक जहाँ मुसलमानों की कसरत है वहाँ इस कैंसर की शरह बिल्कुल ना होने के बराबर है और जाहिर है कि ये फ़ायदा है इस्लाम की उन तालीमात का जो शराब नोशी से हमें मना करती हैं। Another example is when I covered Gardasil, a vaccine against human papillomavirus, the cause of cervical cancer among women. Again, incidence of cervical cancer in women in Muslim countries is much lower, and this reflects the benefits of Muslim values and marriage practices in terms of cancer incidence. Clearly, the teachings and pious relationship practices of Islam are providing clear health benefits in the world. एक और मिसाल ये कि जब मैं गार्डासिल के बारे में पढ़ाता हूँ
गार्डासिल वो वैक्सीन है जो ख़वातीन में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से पैदा होने वाले सर्विकल कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। मुस्लिम ममालिक की ख़वातीन में इस कैंसर की तादाद ना होने के बराबर है। साफ जाहिर है कि ये फ़ायदा है इस्लामी इक़दार का और बिलखुसूस अज़दवाजी ताल्लुकात के बारे में इस्लामी तालीमात का। बगैर किसी शक व शुबा के ये तिबी फ़वाइद इस्लाम की पाकीज़ा तर्ज़ हयात और आपस के पाकीज़ा ताल्लुकात का नतीजा है। Medical science is proving today that alcohol causes many medical problems, and cancer is only one of them. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told us 1450 years ago that there are alcohol consumption cause diseases. Medical science finds today that illicit physical relationships are also causing disease. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam provided us that guidance 1450 years ago. The light was provided to us. It's up to you and me to acquire it. इस्लाम कबूल करने के बाद जब मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और कुरान पाक को पढ़ा तो मुझे बहुत हैरत हुई कि जो चीज़ आज मेडिकल साइंस साबित कर रही है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने 1450 साल पहले इनके बारे में हमें मुकम्मल रोशनी अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। मेडिकल साइंस आज बता रही है कि शराब नोशी कैंसर जैसे मौजी अमराज का बाइस बनती है, और हुजूर अलैहिस्सलाम हमें ये तालीम 1450 साल पहले दे चुके हैं। मेडिकल साइंस आज पाकीज़ा ताल्लुकात की बात करती है, जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने 1450 साल पहले हमें ये तालीम अता फरमा दी। दीन की रोशनी हम तक पहुंच चुकी है। अब ज़रूरत ये है कि मैं और आप इसको पढ़ें, इसे समझें, इस पर अमल करें और जितना मुमकिन हो सके इसको आगे फैलाने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक मुसलमानों ने इस्लामी तालीमात पर अमल किया वो तरक्की की राह पर गामजन हुए, और जब उन्होंने इस्लामी तालीमात को छोड़ा तो वो ज़वाल पजीर हो गए। I would like to tell you about some of the most moving and influential aspects of Islam that have affected my life and work in a non-Muslim world during my 12 years as a Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, his blessed life, Quran-packed, hadith, and guides like Pir Sahib and Qibla Sahib have all provided me with an unmatched set of values and guidance for dealings with the modern, rapidly changing non-Muslim world. I'd like to express my sincere gratitude to Pir Sahib and Qibla Sahib for what they've done to make my journey in Islam meaningful and fulfilling. They're my role models. अब मैं आपको इस्लाम की कुछ ऐसी पुरअसर शख्सियात के बारे में बताना चाहूँगा जिन्होंने मेरी 12 साल ज़िंदगी पर गहरा असर डाला और मेरे काम में मेरी बहुत मदद की। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी हयात मुबारका, उसके बाद कुरान मजीद और दौर हाजिर में मेरे रहनुमा पीर साहिब और किबला साहिब। इन शख्सियात ने मुझे बेमिसाल रहनुमाई फराहम की, जिसकी वजह से मैं इस जदीद गैर मुस्लिम माशरे में कामयाब ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। मैं पीर साहिब और किबला साहिब का बहुत शुक्रगुजार हूँ हर उस चीज़ के लिए जो इन्होंने मेरे लिए की, ताकि मेरा इस्लामी सफ़र और मेरी इस्लामी ज़िंदगी बामाना और मकसद से भरपूर हो सके। The life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has been particularly inspiring to me personally. I think it should be for everyone. I've had the privilege to visit places where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam worked and lived. I've had a chance to experience the peace and sanctity of Medina Pak and Mecca Pak. I've been particularly moved by the early struggles of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I made the trip from Medina Pak to Butter Wells. You can easily see during that trip that it was extremely difficult to travel at that time. One can only be inspired by the adversity he and his followers had to overcome.
It makes our day-to-day problems today seem small and manageable. All my problems become little problems compared to the challenges he faced. ज़ाती तौर पर मेरे लिए हुजूर अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका बहुत ही मुतासिर कुन है और मेरे ख्याल में सबको यही समझना चाहिए। मुझे इस आदत भी हासिल है कि मैं उन पाक जगहों पर गया हूँ जहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी बसर फरमाई और वहाँ पर काम किया। मुझे मदीना शरीफ और मक्का पाक के सुकून और पाकीज़गी को महसूस करने में बिलखुसूस महसूस कर सका। बिलखुसूस हुजूर अलैहिस्सलाम की इब्तिदाई जदोजहद से मैं बहुत मुतासिर हूँ। मैंने मदीना पाक से बदर के मैदान तक का सफ़र भी किया और जब आप इस रास्ते का सफ़र करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो रास्ता कितना दुश्वार है। वो सख्तियाँ जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने और आपके असहाबे किराम ने बर्दाश्त की वो मुतासिर कुन हैं। इनको देखकर तो लगता है कि हमारी आज की मुश्किलात बहुत हकीर और बआसानी हल हो जाने वाली हैं। I think we all should be inspired to do the best we can do in the world he helped to shape. And see and use the gifts that he provided to live out our lives in a way that will help spread the deen. मेरा ख्याल है कि हम सबको अपनी बेहतरीन कोशिश करनी चाहिए कि ahsan अंदाज से उस इस्लामी माशरे में रहें जिसको हुजूर अलैहिस्सलाम ने तशकील दिया और हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात के उन तोहफ़ों को इस्तेमाल करें जो आपने अता फरमाए ताकि दीन की इशाअत और हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात का प्रचार हो सके। Among the gifts Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gave us to help address our problems is Quran Pak. Quran Pak provides us with a value system that we can use to cope with emerging challenges in the modern world. It does so because its message is timeless. Other books come and go, but Quran Pak gives us an enduring message and provides a set of examples we can use to cope with daily challenges. हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए जो सबसे बड़ा तोहफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया वो कुरान मजीद है। कुरान पाक हमें वो कदरें वो वैल्यूज़ अता करता है जिनकी बदौलत हम जदीद दुनिया में पेश आने वाले मसाइल का बाखूबी सामना कर सकते हैं। ये इस वजह से है कि कुरान पाक का पैगाम हर ज़माने हर जगह और हर फर्द के लिए है। बाकी किताबें आईं और चली गईं लेकिन कुरान पाक का पैगाम लाजवाल है। कुरान पाक हमें वो पैगाम देता है जिनकी बदौलत हम अपनी ज़िंदगी को आसान अंदाज से गुजार सकते हैं। You do not need to give up Islam and leave and the Quran Pak in order to become modern. I repeat, you do not have to give up Islam and Quran Pak in order to become a modern person. Research proves that the guidance of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam provided us 1450 years ago is valid today. The lessons of Quran Pak are current and valid today. We need to learn, follow, and spread them. Quran Pak provides us guidance about things that really matter and helps us focus on preparing ourselves for our future life. आपको मॉडर्न बनने के लिए इस्लाम और कुरान पाक को छोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैं अपना जुमला दोबारा दोहराता हूँ कि आपको मॉडर्न बनने के लिए इस्लाम और कुरान पाक को छोड़ने की कतई कोई ज़रूरत नहीं। दर हकीकत रिसर्च ये साबित करती है कि कुरान पाक की तालीमात और वो हिदायत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाई वो आज भी काबिल अमल और ज़रिए निजात हैं। When I teach my students in pharmacy courses and work on Muslim student needs, these are the principles and inspirations from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that help shape my way forward. May we live and die as true Muslims, and may we be with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam on the day of judgment. जब मैं अपने तलबा को फार्मेसी के कोर्सेज पढ़ाता हूँ या मुसलमान बच्चों की ज़रूरियात का हल निकालने की कोशिश करता हूँ
तो यही उसूल और रोशनी जो हुजूर अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका से हमें मिलती है, मेरे लिए रहनुमाई का बाइस बनती है। आखिर में ये दुआ है कि अल्लाह ताला अगर हमें ज़िंदा रखे तो एक अच्छे मुसलमान की हैसियत से, और अगर मौत दे तो एक अच्छे मुसलमान की हैसियत से, और कल बरोज़ हश्र हुजूर अलैहिस्सलाम का कुर्ब नसीब फरमाए।